Well, as most of you who are joining know that today I'm going to interview Mohammad Sadriwala, the spoken word artist. But I'm feeling a little gloomy right now because I just read about how Sushant Singh Rajput committed suicide, and it's just heartbreaking. It's just unreal, and it really makes me think about depression and I wonder about all those people who must be suffering silently in their house and who have no one to share this with. I think everyone has their own medium of expressing what they feel, and today, as we'll be talking to a poet, we'll be talking to a spoken word artist. I think he can give us more insights on how he brings out whatever he's feeling. It can be rage, it can be anxiety, it can be joy, anything. And yes, if you have any questions, you can always share in the comment section. I'm ready with my list of questions. And to give you a brief about Mohammad Sadriwala, I was introduced to him through one of his stories on fake news that he did on Commune's platform. And the beautiful thing about him is that he doesn't just say a story or a poem. He makes a point. He makes you think. He makes you question. He challenges the prejudices that we have been living with for so long. He is the voice of the voiceless, and that's why the title. So yeah, I'll just see if he's here. Mohammad, hi. Hi, how are you? Yeah, I'm so glad to be talking to you. मेरा आवाज मुझे वापस सुनाई दे रहा है. जी, आपकी आवाज शायद से टूट रही है. अब बढ़िया बेहतर है. Okay. जी. But Mohammad, can you use hands free? Possible होगा? I think मुझे still echo आ रहा है. हाँ. Is it better now? Yeah. Okay, cool. Yeah. So Mohammad, I was just sharing your intro with the viewers, and I have to say that the way you raise questions, the way you put up a point through your poetry, through your stories, is really amazing, because it's not just about entertainment. It's not just about making people laugh. It's not just about giving them 5 minutes of yay, ha ha, I love that. Even after your story ends, I think it stays with us. हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं आप. So I thought to talk to you, and I have a list of questions. Well, Mohammad, first of all, tell me that. Yeah, please. नहीं, सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने मुझे इस लायक समझा and you got me over here. So thank you so much. Okay. No. It's glad for us to listen from you. So yes, Mohammad, tell me, how did you start? I mean, I guess you studied in Xavier's, right? Yeah, I started in St. Xavier's when I was in my graduation years. I started that time. So I used to write poems and all, but I got a first time an opportunity was in 2015. So I started writing in 2008 या 10 के आसपास मैंने लिखना शुरू किया, and 2015 में I got a first time, like I went to an open mic and I performed over there and people heard it. So from that, that's how 2015 it started. Then in 2017 I did my first show with Anives, and first poem came out, then with Commune, then with Taper Tate, and that's how things happened. But isn't it, Mohammad, even your first poem was about issue? Was it about love? किसके बारे में थी वो कविता? Like जो इंटरनेट पे आई वो, या जो मैंने अपनी लाइफ में लिखी उसके ऊपर? लाइफ में लिखी वो. तो वो तो मैंने वहाँ पे लिखी थी, मेरे मम्मी पे लिखी थी जी. तो पहली कविता तो और जो आपने परफॉर्म की वो कौन सी थी, मतलब? जो इंटरनेट पे आई वो है प्यारे बाबा. इट वाज एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन, लाइक जो एसिड विक्टिम का जो था वो उसके ऊपर था पूरा. Okay.
And I was just going through all your Yeah, I was just going through all your stories, poems, and I noticed that you said Chidiya Ud, which is on Save the Sparrows, Peele Safe Yeah. Wali, which is on fake news, Bewakoof, जी. which is again on वो आरे. आरे का जंगल, आरे. yeah. जी जी निवाला जी. is on wastage of food. So हर Yeah. बार आपकी जो कविता या आपकी जो स्टोरी होती है, it is about एन इशू, एक मुद्दे पे लेके आप बात करते हो. सो ये पहले से ही आपके जहन में है कि नहीं, एक मुद्दे पे बात करनी है, सिर्फ हंसाना या सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए पोएट्री नहीं है, ऐसा है? आ, ये ऐसा तो नहीं होता है जानवी कि कोई हाँ. मुद्दे पर ही बात करनी है, मगर मगर क्या होता है कि कुछ कुछ मुद्दों से आप काफी रिलेट करते हो. लाइक आई एम वेरी क्लोज टू एनवायरमेंट थिंग्स, सो लाइक आई हैव लाइक 4 to 5 स्टोरीज ऑन एनवायरमेंट एंड ओके. पोएम्स आल्सो. सो ओके. ये कोई डेलिब्रेट अटेम्प्ट नहीं होता है, मगर कैसा होता है कि कोई कोई कॉज आप फील करते हो एंड यू हैव अ वॉइस फॉर दैट. सो हाँ. आई ट्राई टू यूज इट थ्रू माई आर्ट फॉर्म. कभी कभार कोई कोई पीस में मैं हंसाता भी हूँ, कोई कोई पीस में मैं मतलब हंसाता तो बहुत कम हूँ. नहीं, मैंने वो आपका ये वैलेंटाइंस डे वाला भी सुना जो आपने अपनी वाइफ के लिए लिखा है, विच इज वेरी रेयर, जब जी आपने जी. प्यार के बारे में लिखा है. हाँ, मैं बहुत रेयरली प्यार के बारे में लिखता हूँ, और एक ही बार लिखा है, वो वाइफ के बारे में ही लिखा है. नो तो नो, दैट या मतलब, so whatever comes in my way and I feel for it, I just write it down. I don't think, and yes, I believe very strongly that we as a writer have a very big role and responsibility in the society to, uh, change thoughts and perceptions of people ओके. through a good work that can happen. ओके. बट मोहम्मद, कभी भी बैक ऑफ द माइंड वो रहता है कि मैं ये कुछ बात पॉलिटिकल, एक मैं स्टैंड ले रहा हूँ या इस मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, तो उसके रिपरकशंस क्या होंगे, या स्टेज पे आप बात कर रहे हो तो एक कभी बैक ऑफ द माइंड वो रहता है? सबकॉन्शियस माइंड में चलता है, मगर मगर कभी कभार आपको थोड़ा बेबाक भी बनना पड़ता है. ओके. ओके. और मोहम्मद, सबकॉन्शियस हाँ, माइंड में तो होता ही है. मतलब आप फैमिली की थोड़ी चिंता करते हो कि चिंता कर. अगर ये अगर ऐसा कोई पॉलिटिशियन के बारे में बोल दिया तो ये क्या कर लेंगे. हाँ. मगर ओके. बट यू कभी डोंट. कभार कलम उसको, हाँ, वो भी कर देती. बैक ऑफ द माइंड हर इंसान के चलता है, बट जहां बोलना ओके. चाहिए वहां बोलने की कोशिश करते हैं. एंड हाँ. आई डोंट बिलीव कि आई डोंट ऑलवेज क्रिटिसाइज, बिकॉज गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना सिर्फ पोएट का काम नहीं है. मतलब हम भी एज ए इंडिविजुअल भी क्या करते हैं वो भी जरूरी है ना, या एज अ या सिटीजन भी. या. सो एंड मोहम्मद, सो दैट्स द थिंग. मतलब ये आई परफॉर्म विथ महिला मंच, जो मतलब एक विमेन कमेडियंस का ग्रुप है. तो हमें कई बार ऐसा बोला जाता है बाय द ऑर्गेनाइजर कि प्लीज पॉलिटिकल ज्यादा मत करना, या कुछ कंट्रोवर्शियल मत बोल देना, मोदी जी पे जी कुछ मत जी बोल जी जी. देना. ऐसा तो आपको होता है? कोई ऑर्गेनाइजर ने बोला है कि प्लीज, होता मतलब? है, बहुत 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 बार होता है, बहुत बार होता है. बोलते हैं, कैसा होता हाँ. है कि यार उनका इंटेंशन होता है कि एक एक मस्त समा बनाए हम, और हाँ. एक अच्छी इवनिंग, अच्छी गैदरिंग हो. उसमें ऐसा ना हो, क्योंकि हम तो एज आर्टिस्ट बोल के चले जाएंगे, मगर उसके हाँ. बाद वहाँ के जो लोग हैं, और मैं नहीं चाहता मैं कुछ ऐसा बोलूं जिसके कारण आने वाले आर्टिस्टों को उससे फायदा ना मिले, वो मंच बंद हो जाए. ओके. मैं वैसा नहीं चाहता. तो हमें भी ओके. ब्रीफिंग दी जाती है. तो समय के हिसाब से आपको अगर आपको कुछ बोलना है तो आप आपके चैनल से बोलना, क्यों किसी और के माध्यम से बोल रहे हो. बिकॉज टुडे एवरीबडी हैज एन एक्सेस टू यूट्यूब, इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम. If you want to make ओके. a point against government or against any of the politician, if they have done something wrong, and do it through your handle. I don't think we should be using somebody else as a mean and trying to shoot our ओके. ammunition from there. या. सो सो ऑर्गेनाइजर जब बोलते हैं कि यहाँ के परफॉर्म करो, सो यू मेक राइट समथिंग हल्का फुल्का फॉर द इवेंट, डू यू डू सो? Yeah, we do that. So basically, ओके. अभी अभी किसके लिए कर रहे हैं, वहाँ की ऑडियंस कैसी है, तो उसके हिसाब से मैं लाइक एक मिक्स बैग रखता हूँ. अभी जब मैं कॉलेज में ओके. जाता हूँ तो आई मेक श्योर दैट आई टॉक अबाउट Nevala, which is या. on फूड starvation. Then वेस्टेज. I या. food. Then I talk about Proud to be Born in India, which is on patriotism. So I do those pieces. Then I थोड़ी प्यार व्यार की भी बातें करते हैं, थोड़ी मस्ती मजाक भी करते हैं. तो ऐसा पूरा ओके. पैकेज तो आपको एज एन आर्टिस्ट लिखना ही पड़ता है. और ओके. कभी कभार होता है कि आपको एक
पर्टिकुलर कॉज के लिए बुलाया जाता है। जैसे हाँ मोरवी के अंदर मुझे हिंदू मुसलमान एकता के लिए बुलाया गया था। सो मेरा हाँ पूरा कंटेंट उसके ऊपर था कि हम कैसे, कहानी उसके ऊपर थी पूरी। सो इट डिपेंड्स अपॉन ओके कि आप किसके लिए बोल रहे हो, ओके ऐसा होता है। ओके एंड अकॉर्डिंगली यू जस्ट प्ले अराउंड ओके हाँ, accordingly, because they are inviting you, they have their some purpose, and at times like to be very honest with me, मेरे साथ ऐसा कभी कोई ये नहीं हुआ है कि सर आप इस पे बोल दो, इस पे बोल दो। वो लोग बताते हैं सर इस तरीके की ऑडियंस से आप संभाल लीजिएगा, अपने हिसाब से ओके बोल दीजिएगा। हाँ। ओके ओके एंड मोहम्मद मतलब लिखना एक बात है और परफॉर्मेंस अलग बात है सो हाउ डू यू प्रिपेयर बिफोर योर परफॉर्मेंस मतलब आप मिरर के सामने देख के प्रैक्टिस करते हैं या यू जस्ट जॉट डाउन थिंग्स एंड फिर मतलब यू जस्ट गो ऑन द स्टेज एंड इट वर्क्स सो क्या है आपका मतलब So there are, so we do open mics for that. So open mics में we test our या content and all. So more and more open mics we do, we get prepared for the big day. So ओके that's how it works. सो Yeah. वही हो जाता है ओके और ओके हाँ, एंड फॉर एग्जाम्पल अगर 1-2 घंटे पहले जाना है तो बट ऑब्वियसली आप प्रिपरेशन तो करोगे, आप मन में रिकॉल तो करोगे कि मैं क्या क्या बोलने वाला हूँ, कहाँ कहाँ पे पॉसिबल लाफ्टर आने वाले हैं, ड्रॉप होने वाला है मोमेंट, कहाँ पे क्या हाँ हो सकता है, हाँ इफ दिस इज नॉट वर्किंग देन व्हाट शुड आई बी डूइंग। तो वो बैकअप तो पूरा आप तैयार करते ही हो जहन के अंदर। करते हो ओके एंड आई मैंने ऑल्सो नोटिस किया कि आपकी मोस्टली स्टोरीज होती हैं इट्स नॉट लाइक कविता कविता सो इतना कुछ याद या मगअप करने की जरूरत नहीं है इन योर अब फॉर्मेट ये लाइक नॉर्मली मैं तो हर बार जब भी कोई कविता या कहानी बोलता हूँ तो उसको पहले वाले से अलग ही बोलता हूँ, क्योंकि मैं, मेरी खुद की कहानी है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ। और ओके ओके दूसरा लाइक हाँ, कहानियों की तरफ मेरा इंटरेस्ट ज्यादा है इन कंपैरिजन टू पोएम्स। ओके हाँ हाँ, वो तो है ही ऐसा एंड टेल मी अबाउट द प्रोसेस कि मतलब अगर आप आपकी कोई भी कविता या कोई भी स्टोरी के बारे में बात करें कि ये आपने क्या सोच कर लिखा था या कब लिखा था मतलब कई बार मतलब आर्टिस्ट सिर्फ बैठे हैं और लिख देते हैं एंड टुमारो इज द परफॉर्मेंस सो ऐसी कोई बिहाइंड द सीन स्टोरी आप अगर शेयर कर सके बिहाइंड एनी ऑफ योर मैं एक बार परफॉर्मेंस एक कहानी है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई है, बट आई वाज इन लखनऊ एंड ऑन सैटरडे एंड संडे को आई नीड टू बी इन बॉम्बे टू परफॉर्म फॉर कॉम्यून। एंड उन्होंने बोला था कुछ नया लिख कर आना, तो मैंने सोचा था कि मैं लखनऊ जाऊंगा तो वहां बैठ के लिख दूंगा। But it was a very tiring day, and I got done at night at 2 or something, and in the morning I had to leave again at 7 a.m. or 10 a.m. for my flight. मैंने कहानी लिखी नहीं थी, मैं बोला अब मैं क्या करूंगा पता नहीं। Then I was feeling very sleepy, so I slept and I got up because a turbulence happened. And then whatever things happened in the plane, there was a guy sitting next to me. He was traveling for the first time. He wanted to pee very badly, but he didn't know how to unbuckle himself from the seat Oh, belt, okay. and that's how the entire drama I remembered. And then I went to commune event, and I just performed that story what I Oh, just okay. witnessed 4 minutes And before. it So and it was and it like worked. people were splits, like yeah, they were like Okay. crazy था, मतलब कि एक आदमी पेशाब रोक के 10-15 मिनट कैसे बर्दाश्त कर रहा है, एंड द वे ही Okay. उसके जो डायलॉग्स वो थ्रो कर रहा है, तो वो काफी मजेदार था। पर ऐसे नहीं, आप तो ये कैसे एक डिसाइड इंसिडेंट था। करते हाउ डू यू डिसाइड वेदर दिस स्टोरी विल वर्क और नॉट आप किसी को पहले सुनाते हो जस्ट टू हैव अ टेस्ट मतलब टेस्ट ड्राइव ऐसा डेफिनेटली क्योंकि कई बार डेफिनेटली हमको स्टोरी बहुत ही अमेजिंग लगती है पर अगर सुनाए तो शायद उनको हंसी ना आए उस बात पर बिल्कुल बिल्कुल सही सुनाना पड़ता है। लाइक आपके जो करीबी लोग होते हैं, जैसे मेरे मेरे फ्रेंड्स है, मेरी वाइफ है, मेरे पेरेंट्स है, मेरे भैया है, मैं उनको सुनाता हूँ, उन सबका ओके फीडबैक लेता हूँ, एंड देन अकॉर्डिंगली आई मूव। ओके 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 सो बट ऑब्वियसली एंड उनको सुनाना तो चाहिए ही भी। सुनाना तो चाहिए ओके एंड मोहम्मद खास करके मुंबई के पोएट्री सर्किट पे देखा जाए तो बहुत सारे हिंदी में परफॉर्मेंस करते हैं या इंग्लिश में करते हैं मोस्टली आई हैव सीन द इंग्लिश परफॉर्मर्स जो मतलब एक उनका पिच फिक्स होता है मीटर में कविता पूरी बोलते हैं सो कभी इंटिमिडेटिंग लगता है कि मतलब वेदर आई एम गुड वेदर यू नो बिकॉज यू शेयर द स्टेज विद देम यू परफॉर्म विद देम सो कभी वो लगता है खुद पे कॉन्फिडेंस रहता है उस टाइम पे Like matlab you're asking, I'm just reframing the question. You mean to say या when I see somebody performing way better, after that do I get nervous, or do I feel good like okay, I am No, performing no. with him? So, do you get intimidated by other performers?
yeah, it's an art. It touches your heart and soul. So you do get like, यार ये बहुत Okay. अच्छे से perform कर रहा है. Like I see the genuineness and the innocence which through which a person performs. That connects me more. Okay. And what about the lockdown? I mean, did it help you write more? Yeah, you were just taking one day at a time. I No, I didn't write more because I have a 9 to 5 job in an advertising Okay. agency. So I didn't write much. But I have Okay. started a new podcast. उसका नाम है हिंदुस्तान की कहानियाँ, जहाँ पे मैं लोगों की कहानियाँ बता रहा हूँ Okay. हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से, चाहे वो जयपुर हो, चाहे वो मद्रास हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गांव रसूलपुरा हो. So we are telling stories of people in India, Indians, like how they inspire people, what they are doing. And amazing stories. Like recently I'm working on a story जहाँ पे एक औरत daily she used to walk 5 kilometers one way to go and collect the ration, and then Okay. she would come back in scorching heat in Maharashtra, and she would distribute in her village, and then again she would Okay. go back. So I'm doing a Okay. story on her. So that's the new thing which we have started. जिसका नाम है हिंदुस्तान की कहानी. It's there on Instagram also. You can go and Okay. check that out. I'll surely check that. Yeah. And Mohammed, I was talking to Rakesh Tiwari, जो भी पहले कॉल सेंटर में काम करते थे. He even had this जी dual जी. life of working in the office and then performing at night. So tell me, even you have a day job. So how does it impact you as a performer? ऐसा कोई होता है कि just because you are, having this dual life, so one impacts the other. So At advertising times life it का कोई, does. yeah. But in advertising also, I'm a copywriter, so I write there Okay. also. I there write Okay. mostly for brands. So I have a leverage in comparison to other people who have their dual life or a job. Okay. And secondly, at times it has its own repercussions in terms of pros and cons. Pros अगर मैं बताऊँ तो जैसे अभी कोई शो नहीं है तो at least you're doing your normal job, you're earning from that. Yeah. Cons, if I tell you somebody says सर ट्यूसडे को इवेंट है, सर कल आ जाओ, वेडनेसडे को इवेंट है, नहीं हो सॉरी भाई सकता. काम है, मैं नहीं आ सकता. I can only come on Saturday, Sunday. So Okay. that's how it So goes. that's the But like I'm trying and I'm striving myself day in day out so that I do that art form as a full-time thing. okay. Okay. Uh, And Mohammed, tell me, which has been the best piece that you have written according to you? कि मतलब ये आपका मतलब इसमें आपको बहुत मजा आया था लिखने में या परफॉर्म करने में. अलग है, परफॉर्म करना अलग है, लिखना अलग है. मैं एक पीस बताता हूँ जो शायद बहुत कम लोगों ने यहाँ सुना है, मतलब सुना Okay. होगा उसके बारे में. हालांकि वो पीस मैं कॉलेजेस में अक्सर परफॉर्म करता हूँ. उस हाँ. पीस का नाम जनाजा है. सो Okay. जनाजा एक पीस है. एक्चुअली हुआ ये था कि वन ऑफ माय कजिन्स, ही वाज लाइक 1-2 years elder to me. It happened like 3-4 years ago. He Okay. passed away suddenly because of a stomach cancer. हाँ. And I went to the masjid to attend the last prayers and funeral. So जब मैं वहाँ गया तो उसके पापा जो थे वो जनाजे को देख देख कर रो रहे थे. I could feel that Okay. pain. I only met my cousin. He was a like दूर के cousin थे. और मैं उनसे सिर्फ 2-3 बार ही मिला. एक बार ही मिला था, 2-3 बार भी नहीं, एक बार ही मिला था. उसमें भी वो बोल रहे थे, मैं तो सुन रहा था. So I just had a Okay. blurred image of him. But what I saw in masjid for those like 5-10 minutes I was there, it touched me so much. I came back and on my desk I just wrote the poem and I cried after that. Okay. And I cried a lot after that. So my Okay. colleague said, "Ki, why are you crying?" I said, "I've written something." The Okay. moment they heard it, they started crying Okay. because that's a piece which is very special to me. Like वो पीस को कोई ज्यादा व्यूज भी नहीं है जनरली. उसको कुछ तकरीबन 40-50 हजार व्यूज ही है. उसको ज्यादा व्यूज नहीं है. Okay. So that's irrespective of the views, but that's one of the very special piece, and I'm very proud of that poem. Okay. No, if you could just share a few lines, if you remember. So it starts in this way. सब खड़े होगे मेरे जनाजे के इर्द गिर्द, किसी की बातों में तो किसी की निगाहों में मेरा जिक्र होगा. सबके अपने अपने अंदाज होंगे, लेकिन अब्बा मेरे जनाजे की निगाहें सिर्फ आप पर. रो रो कर आपकी आंखें सूज गई होगी, गम की फिजाओं में आपकी धड़कनें बढ़ गई होगी. ख्याल रखना आपसे ज्यादा खुदा को मेरी जरूरत होगी. ख्याल रखना मेरी अम्मी का भी, वो भी किसी कोने में रो रही.
खो रही है बरोबर है. Yeah, I mean So the pain yeah, of losing your child, I mean yeah, you can't yeah. compare it to anything. So True. that was a very special one. Yes, Special sir. one, yeah, yeah. Interesting. And मोहम्मद, टेल मी कि अभी मतलब ड्यू टू कोविड-19 इवेंट्स जो फिजिकली पहले मतलब स्पोकन वर्ड पोएट्री के इवेंट्स हुआ करते थे वो अब शायद कुछ टाइम के लिए तो नहीं ही होंगे. सो डज इट कंसर्न यू कि अब परफॉर्मेंस नहीं होगा? सो व्हाट एल्स? बहुत सारे आर्टिस्ट ऑनलाइन परफॉर्म करते हैं बट दे डोंट हैव पेमेंट मॉडल कि उससे यू नो दे कैन अर्न. So does that? I mean, you have a job, but still. Yeah, it's a very big concerning thing क्योंकि आपका एक major source of income goes away. हाँ. And like you can't do anything, like you can't fight against nature. Like Yeah. it's like a natural calamity only what we are facing right now. ये किसी अकाल से या किसी बाढ़ से कम नहीं है जो हम फेस कर रहे हैं. So one is that. Second, yes, people are trying their best to do online shows and all. And उसमें कैसा है कि everybody can't be successful. Like those who have a great online presence, they'll be only be able to achieve something. And Yeah. the most concerning part जानवी ये है कि शो देखने के लिए लोगों के पास पैसे भी तो होने चाहिए ना. Yeah. True. अगर अगर मैं 50 रुपए टिकट रखूंगा तो फिर मुझे कुछ नहीं मिलेगा. अगर मैं 400 रुपए टिकट रखूंगा तो फिर सवाल ये आता है कि भाई कितने लोग आएंगे देखने. Yeah. क्योंकि आज लोगों की पे कट्स कट के आ रही है 30%, 50%. लाइक आई नो अ फ्रेंड, इनको 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है. शी इज फ्रॉम Yeah. ट्रैवल एंड टूर्स एंड ट्रैवल डिपार्टमेंट में काम करती है. हाँ, उन लोगों का तो मतलब आई हैव अ फ्रेंड दैट it's शी इज गेटिंग ओनली 5,000 अ मंथ. okay. तो 5,000 में फिर इंसान 400 रुपए कैसे कैसे खर्च करेगा? कैसे या खर्च 100 करेगा? रुपए भी खर्च करने के पहले वो सोचेगा. तो ये बहुत सारे चैलेंजेस है. हम चाहते तो है कि भाई हमारा शो सब लोग आके देखे, मगर उनके नजरिए से भी तो सोचने वाली बात है ना. It's True. as a society, if everybody blooms, then only we bloom. It's not Bloom. that one Yeah. individual blooms and the other one doesn't bloom. Yeah, it doesn't happen in isolation. It doesn't happen in isolation. And this thing has hit us left, right, center. There is no sector or nothing in this world that has not been affected by this virus. Affected. Yeah. ऐसा मैं वो दिन बैठा था, मुझे किसी ने बताया कि जो किसान फूल उगाते हैं हाँ. वो लोगों की हालत बहुत खराब है. तो मैंने बोला यार इनकी हालत क्यों खराब है? फिर किसी ने बोला कि मंदिर मस्जिद बंद है तो लोग चढ़ावा कैसे लेके जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे? ओह, शादियां. मैंने बोला हाँ यार ये भी सही है. मतलब ये भी सही. कई बार तो हम सोच ही नहीं पाते कि उनकी क्या मुश्किलें होंगी. आई मीन मैंने Yeah, लॉकडाउन their में worlds ऐसे किस्से कहानियां सुने हैं. मतलब आप सुनो तो कभी कभार आप रो जाओ कि यार कैसा हो रहा है. अरे एंड देन ऑन द अदर हैंड लाइक आप सुनते हो कि भाई इतना रिलीफ फंड है. लाइक आई डोंट माइंड सेइंग इट. पीएम रिलीफ फंड में लोग पैसा डाल रहे हैं, पर फिर मगर आपके आसपास गलत हो रहा है. जो मदद में है उनको दो ना. उन पे तो कुछ उनको आप नहीं हो. मदद उनको बिकॉज कैसा होता है कि जानवी देयर इज टॉप ऑर्डर तक जो ट्रांसपेरेंसी है बहुत कम है. या तो और कैसा है कि कोई मुझे बता रहा था कि कोई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो लोग करोड़ों रुपए पीएम फंड में डाल रहे हैं. ऑन द अदर हैंड देन दे आर रिमूविंग 20 and 30% of their staff members because they can't manage. So if you can't manage then don't pay. या अब पीएम ने तुम्हारे गर्दन पे तो तलवार रखी नहीं है कि भाई पैसे दो ही दो. देना हो तो दो, नहीं देना हो तो मत दो. नहीं तो मत दो. और अगर आप दे सकते हो तो पहले अपने आसपास देखो ना कि आप उनकी मदद कर रहे हो क्या, जो जरूरतमंद है. ट्रू ट्रू. नहीं, इस पे तो कोई अकाउंटेबिलिटी कोई पूछेगा तो उसको एंटी नेशनल बोल देंगे. सो उसको हाँ. और वही मतलब जरा काफी सारी चीजें हैं जो सवाल पूछते हैं उनको पीछे उनको गलत लेबल कर दिया जाता है. वो वाली बात भी है. पर इसलिए मोहम्मद वी ऑल आर रियली प्राउड ऑफ यू बिकॉज यू आस्क द राइट क्वेश्चंस एंड उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए. आई थिंक मेनी पीपल वुड बी मैसेजिंग यू और टेलिंग यू कि अच्छा काम कर रहे हो. वो खुद नहीं कर पाते बट दे आर रियली हैप्पी फॉर यू.
होता है ऐसा? मैं कैसा होता है जानवी के सवाल करने का भी एक तरीका होता है। मैं अगर मेरा कोई सवाल होता है तो मैं किसी को डीमीन करके नहीं करता हूँ। हम्म। बट ऑब्वियस है, अगर गवर्नमेंट है तो लोगों ने उनको सिलेक्ट करके किया है, तो सवाल पूछने का भी एक तरीका होता है, एक लिहाज हाँ। होना चाहिए। हम्म। हाँ, ये अलग बात है कि उनकी एंड से जो जवाब दे रहे वो बदतमीजी पे उतर जाए, तो हमें उनके साथ बदतमीजी पर नहीं उतरना चाहिए। आपका ट्रू। सवाल है, पूछो। और ये बात भी एक सही है कि पांचों उंगलियां तो सेम होगी नहीं। कुछ लोग आपको ट्रू। सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, एंड कुछ दैट नहीं इज करेंगे। फाइन। एंड ओके। यू शुड बी फाइन विद दैट। फाइन विद दैट। ट्रू ट्रू ट्रू। एंड मोहम्मद, आपकी एक स्टोरी है, हार के भी जीत गए, वेर यू आर सेइंग जी। अबाउट यू वेंट फॉर एन इंटरव्यू और आपको बोला कि अगर दाढ़ी कटवा लो तो मतलब यू वुड बी गिवन द जॉब तो हो एंड यू जाएगा। डिनाइड इट। या सो टेल मी, या आई मीन दीज आर द स्टोरीज जो कि मतलब वो इशू है कि हाउ माइनॉरिटीज आर ट्रीटेड और हाउ पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड फॉर बेसिक थिंग्स लाइक अ जॉब, तो वो इसमें उभर के आता है। बट यू प्रेजेंटेड इन अ वे कि मतलब हाँ एक अच्छी स्टोरी, इमोशनल स्टोरी लगे। So that was commendable. I really loved it. And tell me, in wouldn't say real life, but say in the poetry circuit, do you ever get discriminated or do you ever get pointed out just because of you belonging no, to a that certain no. that that? In that way, that has not been, there has never been a case, not Oh, even okay. for 1 second also. Like we all as a community member, we हाँ. all are. मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। जो मेरे खास दोस्त हाँ. राकेश तिवारी है, वो Okay. पंडित या ब्राह्मण है। हाँ. वैसे Yeah. उनकी फैमिली से बिलोंग करते हैं, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं। तो हाँ. मैंने उनको जानवी उनको उनसे मिले मुझे बहुत एक अरसा हो गया था। तो मैंने उनको कहा हाँ. कि आप सैटरडे को आइए। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, हम डिनर साथ में कर लेंगे, मेरा उपवास भी खोलना है। मैंने कहा अगर Okay. उपवास खोलना है तो आप मेरे घर पे आइए, मैं वेज खाना बनवाऊंगा आपके लिए। Oh, वो मेरे okay. घर पे आए, हम दोनों ने मिलकर वेज खाना खाया। आई गेस दैट्स द आंसर टू योर क्वेश्चन। Question. Yeah, yeah. That वो तो सीन नहीं है. I mean, yeah, yeah, definitely. बिल्कुल नहीं है। Yeah, कहीं पे भी मैंने तो नहीं देखा, एटलीस्ट बॉम्बे में तो नहीं देखा। और मेरे हिसाब से जहां तक मेरा मेरा अंदाजा है, ये चीज स्टैंड अप कॉमेडी में भी नहीं होगी कहीं पे। no, no, I एज asked एज एन because आर्ट फॉर्म में थोड़ा बढ़ जाता है। मतलब आप एज ए इंसान को इंसान की तरह ही देखते हो। मोहम्मद को मोहम्मद की तरह देखते हो। मोहम्मद को ये नहीं देखते हो कि मोहम्मद किस फेथ से बिलोंग करता है। ट्रू ट्रू एज ए ट्रू। इंसान की तरह ही देखते हो। मैंने ये प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि आपकी मोस्टली कविता में जो मुद्दा होता है, तो मुझे लगा कि एक पर्सनल रेज या एक पर्सनल कंसर्न रहा होगा कुछ चीजों के लिए या कुछ एक्सपीरियंस किया होगा, इसीलिए वो स्टेज पे उभर के आ रहा है। सो दैट्स व्हाई उस आई वो जस्ट थॉट टू। पर्सनल एक्सपीरियंस तो लाइक स्टेज के बाहर भी एक दुनिया है ना हमारी। तो या वहां पे लोग एक्सपीरियंस करते हैं। या कभी कभार ऐसा होता है कि किसी पोएट के किसी अपने के साथ ही एक्सपीरियंस होता है, या वो कभी सड़क पे होते देखता है, कोई मुद्दे को होते देखता है, तो उसको अगर वो बात चुभती है तो वो लिखता है उसके ऊपर, वो या बताता है। ट्रू ट्रू ट्रू। And Mohammed, for performing or for writing, reading is a very important aspect. So do you also like read certain और आप किसे सुनते हो या आप क्या पढ़ते हो? रीडिंग बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। मैं हाँ. बहुत कम पढ़ता हूँ, ये मेरी सबसे बड़ी खामी है। मतलब सबसे बड़ा वीक पॉइंट है मेरा। वक्त Okay. मिलता भी है तो भी मैं लेजी हो जाता हूँ। मैं अपफ्रंट ये बात बोल रहा हूँ, आई डोंट डिनाई दिस। मैं बहुत लेजी Okay. हूँ पढ़ने में। हाँ. मगर Okay. जब भी वक्त मिलता है तो मैं पढ़ता हूँ थोड़ा थोड़ा, बिकॉज मैं एज ए आई एम अ वेरी स्लो रीडर। लाइक मुझे वक्त लगता है पढ़ने में। लाइक Okay. मैं फास्ट नहीं Okay. पढ़ सकता। Okay. तो वो एक चीज है। और सुनने की कोशिश बहुत करता हूँ। Okay. लाइक मैं कोई मेरा ऐसा मुंह खाली खाली स्टेज पर ही खोलता हूँ, लाइक ऑन द अदर एंड आई एम जस्ट लिसनिंग टू पीपल। ओके, बट ऐसे कोई कवि है जो आपको पसंद है या ऐसे कोई स्टोरी टेलर है जिनकी कहानी आपको आपको पसंद है? समवन हु यू लुक अप ऐसे टू? बहुत ऐसे बहुत सारे हैं जिनको मैं हाँ. आई लुक अप टू एंड आई रियली एंजॉय देयर वर्क। अगर मैं जो क्लासिकल पोएट्स में से बोलूँ तो अल्लामा इकबाल है, फैज अहमद फैज साहब है। फैजल. कंटेम्प्रेरीज ओके. में गुलजार साहब की कविता बहुत कविता. अच्छी लगती है, हाँ. उनके बोलने। हाँ। हाँ. फिर हमारे स्पोकन वर्ड के सर्किट से अगर मैं कहूँगा तो हाँ. महक की कहानियां बहुत अच्छी लगती है। ओके. राकेश भाई का मुझे अंदाज बड़ा पसंद है। वो जिस हाँ. अंदाज में और जिस ट्रिप, लाइक
I've never seen Yeah. somebody so spontaneous. Like he is like, because I've traveled with him so much at times. I हाँ. remember we were performing in Chandigarh, and he just created a new piece in that three hour drive in his Oh, mind. okay. He didn't even write. He didn't even write. That is the He just speciality of that guy. performed. Oh, He okay. just performed. या और कभी कभी तो राकेश जी बात करते हैं तो भी ऐसा लगता है कि ये कविता ही है या मतलब इट्स जस्ट उनको खाली बोल दो बात करनी है, फिर तो बात करते ही ना, फिर आपको बोलने का मौका ही नहीं देंगे. सो ट्रू एंड टेल मी हाउ डिड यू वर्क ऑन योर उर्दू ये आपने कॉन्शियसली कुछ उस पे वर्क किया या इट जस्ट कम्स नेचुरली टू यू क्योंकि उर्दू में तो कुछ भी बोल दो इट लुक्स सो ईयर प्लीजिंग इट साउंड सो रोमांटिक तो There are couple of things for this. हाँ Just a second. That या उर्दू सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि आसपास में जिस बस्ती में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ उर्दू लोग काफी इस्तेमाल करते हैं. सो यू पिक अप फ्रॉम योर सराउंडिंग्स. लाइक हमारे यहाँ पे तलफ़ुज़ बोलना, महफूज बोलना, शिराकत बोलना, ये कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है, ओके तो ये बहुत ही लाइक मेरा छोटा नेफ्यू है. हाँ वो हिफाजत बड़े आसानी से बोलता है, ज़ को सही तरीके से प्रोनाउंस कर लेता है. Oh, okay. तो Yeah, I I think guess it's take the that. part of the upbringing. It's a part of the upbringing. Like normally if you will see like Catholic people, they have a very great command on English. Like I've seen my Catholic Yeah. friends, they have a great command on English as a vocab. They pick up from there, from this thing. And second, हमारे community में ऐसा होता है कि हम बचपन से मरसिया सुनते आते हैं. It's a form of a poetry which is recited when you mourn for Imam Okay. Hussain, who was martyred in Karbala. So that's an integral part of our life. And those marsiya, as a form of a poetry, has a lot of Urdu words, and they have beautiful Urdu Okay. words. So वो भी उसका भी बहुत बड़ा रोल मेरे लाइफ में रहा है. So those two Okay. things have played a great role. Great role. Okay. And Mohammed, अभी मतलब so many artists, so many poets take up poetry workshops. So tell me how effective तो नहीं बोलूँगी मैं पर if you have to give like 2-3 things that any storyteller or any poet should take care of तो वो क्या चीज़ होगी? As a workshop or as an attendee? नो एज अ परफॉर्मर अगर किसी को परफॉर्म करना है तो क्या चीज उनको ध्यान में रखनी चाहिए अच्छा, ऐसा क्या कुछ चीजें ध्यान something? रखनी चाहिए? सबसे पहला सबसे जो बेसिक चीज मैंने देखी है कि आप उस मोमेंट को एंजॉय करो. क्योंकि लोगों को लगता है कि इस पे ताली नहीं बजी, इस पे चुटकियां नहीं बजी, तो शायद मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं नहीं किया. बट कभी कभार क्या होता है कि वो मोमेंट में ऑडियंस उसे एब्जॉर्ब कर रही होती है. वो इतने खो जाते हैं कि दे डोंट अंडरस्टैंड वेदर टू स्नैप और टू क्लैप और वेदर टू Clap. हूट फॉर द परफॉर्मर. या So just enjoy that moment. And secondly, like normally I've seen like at time people just put curse like गालियाँ डाल देते हैं कविताओं में, तो सोच समझ के डालिए. कभी कभार यंग जो Okay. होते हैं, आपको उसकी जरूरत है, या इवन इनफैक्ट बड़े बड़े शब्द भी जो होते हैं, हाँ अगर उसकी जरूरत है तो डालिए, नहीं है अगर सिंपल तरीके से भी बात बोल सकते हो तो अच्छी बात है ना. ओके या सो आई एंड थिंक थर्ड अगर आप उन टॉपिक्स पर लिखिए जिस पे आप बिलीव करते हो, उस पे मत लिखिए जिस पे ट्रेंड चल रहा है. अभी लाइक फॉर एग्जांपल लाइक ब्लैक लाइव मैटर्स करके जो चल रहा है, सबसे पहली बात अपने आप से सवाल कीजिए, कभी आपने किया ऐसा? आपने कभी समझ में किसी को आता है ऐसा ये डिफेंड विषय किया है क्या? वो क्या? बिकॉज कभी कभार उसके फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं. फायदा ये हो जाता है आपने कविता लिख दी क्योंकि वो टॉपिक ट्रेंड कर रहा है इंटरनेट पे, तो आपकी कविता हिट हो गई. बट वो जब खत्म हो जाएगा और उसको दोबारा जब आप पढ़ोगे या आप जब देखोगे तो आप अपने आप से सवाल करोगे कि मैंने क्यों लिखी थी ये कविता. तो उस वक्त के लिए आपके पास जवाब होना चाहिए. ओके So always think- write on topics which you believe. If you believe in love very strongly, like you want to show different shades of love, like you want to show like somebody has
cheated on you, जो भी तरीके से आपको बताना है बताओ, but if you believe it then only you write. Just मतलब कि भाई तन्हा शायर बहुत कूल लगता है तो मैं लिख दूं, वो मत करो मतलब. Yeah. I think being authentic to our own voice is very important when we are writing. Yeah, then only you will be recognized as a voice, na. Otherwise, people will just consider you as a sound. Like, okay, this sound Yeah. comes and goes. Like, it won't stay with them in their minds and heart. Like, True. एंड मोहम्मद जैसे कुछ गलतियां होती है जो हम कर देते हैं कभी परफॉर्मेंस के टाइम. सो आई थिंक इवन आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा दैट यू वेंट ऑन द स्टेज, बहुत परफॉर्म कर बार. दिया एंड इट जस्ट बॉम्ब्ड. आई मीन या लोगों को समझ में नहीं आया या किसी ने तालियां नहीं बजाई एंड यू हैव टू जस्ट कम बैक फ्रॉम द बहुत स्टेज. हाउ डू यू, बहुत बार. सो व्हाट डू यू डू, व्हाट्स योर रिएक्शन? आपको चल जाता है, यू आर जस्ट बैक टू नॉर्मल या इट टेक्स टाइम? हाउ डू यू रिएक्ट टू इट? I just do two things. I analyze why it didn't work. Number one. Second, after knowing, I just tell, okay, ho gaya. Next time, I'll be careful. That's it. Okay. You don't stay with it. Like, it sounds very simple, but it comes with a lot of practice. Yeah, and I think especially जब भी किसी organizer ने बुलाया होता है और you just it doesn't work. It doesn't work. Yeah. But they also understand at times. They also understand. They are very. यही होता है, अच्छे ऑर्गेनाइजर के साथ काम करने में बड़ा मजा आता है जब लाइक वो आपको समझते हैं, आपके काम को समझते, तभी उन्होंने आपको बुलाया. अगर कोई ऑर्गेनाइजर आपको नहीं समझ रहा है और वो बोलेगा सर मचा दो आप, तो बस लोग तालियां ठुके. मगर अगर लोग आपको बोलने ही नहीं दे रहे तो फिर आप कहाँ से कुछ करोगे मतलब? कहाँ से कुछ करोगे यार. एंड समटाइम्स आई गेस आप किसी मुद्दे पे बोल रहे, इश्यू पे बात कर रहे हैं, पर ऑडियंस या उससे रिलेट नहीं कर पाती या उनको इस मुद्दे के बारे में पता नहीं होता. सो आई थिंक इवन दैट then as an artist you need to understand like the audience is not getting you, so you change the topic, you say something else. Change the topic. Because see, audience is come here for you. You have not come here for it's not the vice and versa. तुमको मौका दिया गया है इनके लिए बोलने के लिए. बोलने का. You better take care. Like basically they are your क्या बोलते हैं, वो होता है ना, कंज्यूमर किंग होता है. सो वो रिलेशन ऑडियंस इज द हाँ वो 50 लोग आज आए हैं तो तुम कुछ हो. अगर वो 50 लोग एक बैड एक्सपीरियंस के साथ जाएंगे, सो इट विल बी हार्मफुल टू यू ओनली. ट्रू. And मोहम्मद, do you ever have to force yourself to write कि मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा, the paper is blank, the word file is blank, but कुछ लिखना पड़ेगा इस पे? I mean आपको तो ऑफिस में भी शायद ऐसा होता होगा, but when it comes to storytelling and poetry तो क्या होता है? नहीं, उसमें नहीं होता है. उसमें तो वो पता नहीं मतलब it works well, like हो जाता है. So for storytelling and poetry it just works for you, it comes naturally. It comes naturally. Okay. And ऐसा होता है कि do you write everything या sometimes it's just going on the stage and performing? No, at times I just make my bullet points कि ये बात ये बोलना है. ऐसा बहुत सी बार हुआ है कि like कुछ नया दिमाग में आता है तो I just write that in form of bullet points in notes. वो notes एक बार देख लेता हूँ and then I just go. Okay. ऐसा भी होता है. But वो कभी कभार होता है, like 10 बार में से 2-3 बार होता है ऐसा. Okay. And as a storyteller, what do you aspire to do? I mean, in future कि मतलब इस स्टेज पे परफॉर्म करना है या इसके साथ परफॉर्म करना है या ऐसा कुछ एस्पिरेशन है या नो यू आर जस्ट हैप्पी? बहुत नहीं, एस्पिरेशन तो हर इंसान के होते हैं मतलब. नाच अगर कोई इंसान बोले मेरे एस्पिरेशन नहीं है तो फिर शायद उस वक्त अपने आप से बेईमानी कर रहा है. हर इंसान के होते हैं. चाहते हैं मतलब बड़े से बड़े मंच पे, मतलब बहुत बड़ी ख्वाहिशें हैं, सपने हैं, मगर उनके लिए सबसे पहले तो अपने आप को और रिकॉग्नाइज करवाना, अपना कंटेंट और सेलेबल बनाना. अभी तो फिलहाल उस पर काम कर रहे हैं ताकि जब हम, क्योंकि बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेल टिकट्स, पोएट्री शो एंड स्टोरी टेलिंग टिकट्स. लाइक हमारे लिए अगर हमारे एक शो में 50 लोग आ जाए, सो इट्स एज गुड एज 500 लोग आ गए हमारे लिए. ओके. तो हम भी चाहते हैं कि कोई 500-1000 सीटर ऑडिटोरियम में हम भी करे किसी दिन. मगर हमको वो भी पता है कि पहले हम 50 के तो लायक हो जाए, उसके बाद शायद 500-1000 भी आएंगे किसी में. ओके. एंड मोहम्मद, व्हेन यू से दैट यू आल्सो नीड टू मेक द टिकट्स एंड एवरीथिंग शो सेलेबल, तो टेल मी कि तब अपने खुद के साथ ऑथेंटिसिटी कैसे रख पाते हैं जब आपको पता है कि ऑडियंस को हंसाना भी है या शायद रुलाना भी है. सो यू हैव टू राइट अ फ्यू लाइंस जिन पे शायद वो रिएक्ट करे, तालियां बजाए.
So how do you make sure to keep a balance कि हाँ मुझे इस पे बात भी करनी है और ऑडियंस से भी कनेक्ट करना है, वो होता है कभी डायलेमा? मेरी वाइफ हंस रही है सवाल पे मेरे पास। क्यों? Is this for real? I mean, do you? No. She's just whenever I give interviews, so she just keeps smiling only so that I lose my focus. उनको तो, कहना है कुछ तो coming- प्लीज। नहीं उनको कुछ नहीं कहना। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मतलब हाँ। कैसा होता है कि अगर ऑडियंस के लिए लिख रहे तो वो ऑडियंस आपको जानती है, उसको पता है कि आप जेन्युइन हो या नहीं हो आपकी लाइन में। ओके। अगर मैं कुछ एक बात, अगर मैं 10 लाइन में से 8 लाइन प्यार पे बोल दूंगा तो लोग बोलेंगे ये जेन्युइन नहीं थे मोहम्मद भाई, आज पता नहीं कुछ और ही करने जा रहे थे। तो उन्हें पता है मतलब कि मैं क्या हूँ। अगर मैं 10 में से 3 लाइन प्यार पे बोलूंगा तो बोलेंगे हाँ सही था मतलब। ओके। और 10 में से मतलब दे एक्सपेक्ट कि भाई 5 तो सोशल इशू पे होगा ही होगा, बोलेंगे मतलब रुला के बोलेंगे, छोड़ेंगे हाँ। छोड़ेंगे, हंसाएंगे, ताना भी मारेंगे पॉलिटिक्स पे। तो दे नो दैट। So your audience knows you. That's the reason they are investing their hard-earned 200 rupees, 300 rupees and coming to see you, no? ओके। So they know that, and even an artist knows it कि भाई मैं ये कर रहा हूँ ये genuine है या नहीं। ओके। सो आई थिंक it also comes with practice कि you just give what audience wants. Yeah. Everything comes with a practice. Like it doesn't happen in a snap Yeah. में नहीं होता है। Like snap बचती है अच्छे वर्ड पे, मगर वो अच्छे वर्ड को लिखने के लिए भी तो बहुत टाइम लगता है। टाइम So लगता है same ऐसा। goes for same goes for the art and the art form also. एंड ये जो टाइम लगता है, ये प्रैक्टिस लगती है, टेल मी अपार्ट फ्रॉम दिस इज देयर एनी लीस्ट ग्लैमरस साइड ऑफ बीइंग अ स्टोरी टेलर, बीइंग अ पोएट? क्योंकि दूर से देखे तो लगता है हाँ, ये मतलब इन आर्टिस्ट को स्टेज मिल रहा है, इन आर्टिस्ट को माइक मिल रहा है, बट व्हाट्स द लीस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ द प्रोसेस कि ये नहीं अच्छा लगता? Least favorite part of the process, अभी फिलहाल तो कोई जहन पे नहीं आ रहा है मतलब। ओके, आई थिंक यू जस्ट मतलब लव द कंप्लीट पैकेज। हाँ मतलब सब कुछ अच्छा है, मतलब सब जो भी इज्जत मिल रही है, प्यार मिलता है, मेरे को तो अच्छा ही लगता है। लाइक नॉर्मली ऐसा Okay, कुछ वो नहीं है। Nice. I think I've asked most of the questions, and if there is anything that Mohammed you want to add, then great. Otherwise, I think we can. No, I just want to talk. Like a lot of people have posted Sushant Singh Rajput Yeah, has yeah, committed yeah. suicide. Yeah, in fact, I started the interview with discussing about him. It's so unreal. I mean, it's so disheartening. It's very unreal. It's very unreal. Yeah, and I'm just. Maybe उनके फैमिली को स्ट्रेंथ मिले ये सदमा बर्दाश्त करने के लिए, यही दुआ कर सकता है। Yeah, मैं जाते जाते सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि ये हमारा जो नया इनिशिएटिव है हिंदुस्तान की कहानियां, उसे प्लीज चेक कीजिएगा, और अगर आपको बिलीवेबल लगे, अच्छा लगे, तो फिर उसे सपोर्ट भी कीजिएगा जाके। इंस्टाग्राम पे है @हिंदुस्तान की कहानियां। सो फार वी हैव बीन एबल टू पब्लिश 7 stories, and on every 3rd day of the week we publish 1 story. सो प्लीज सुनिएगा, बिकॉज ये कहानियां मतलब ऐसी है कि आज तक मैं अपनी कहानी सुनाता था, अब मैं लोगों की कहानी सुना रहा हूँ। कहानी सुनाते हो? ओके, no, great. Even I will go and check that out. And so yeah, much. Mohammed, more power to you, and thank you so much for your time. Thank you so much for having me here, and it was a great and a very nice event, like talking to all. Thank you. Bye guys, Yeah. take care. Bye.